property of so what is meant by electrolytes? Yes बेटा क्या होता है electrolytes? किसको पूछा ना? हाँ अभी बताया था ना electrolytes और electrolytes. Okay, so the substance which get dissociated into respective ion by dissolving water and conduct electricity are called as electrolytes. So write the definition of electrolyte. The substance which get dissociated on dissolving in water. The substance which get dissociated on dissolving in water. Substance get dissociated into on dissolving in water and conduct electricity called as electrolytes. क्या electrolyte? The substance get dissociated into ions and conduct electricity are called as electrolytes. Example कौन से electrolytes के हैं? एक ही example है बेटा electrolytes. याद रखना salts, acid and bases are the electrolytes. क्या है electrolytes? Salt, acid and bases are the electrolytes. Salt में example ले लो NaCl, acid में HCl और base में NaOH and many more. So salt, acid and bases are electrolytes because they are dissolving water and form their respective ions. For example, अगर हमने NaCl को water में dissolve किया, it will be converted into Na plus and Cl minus. अगर हमने HCl को water में dissolve किया, it will dissociated into H plus and Cl minus. Okay? And NaOH को dissolve करने के बाद क्या बनेगा? Na plus and OH minus. Okay? So these substances when dissolving water converted into their respective ions. Now दूसरा है non-electrolytes. क्या होता है non-electrolyte? जो water में dissolve करने के बाद dissociate नहीं होता. Okay, for example, consider an example of glucose. क्या फॉर्मूला है? C6H12O6. अगर आप इसको water में dissolve करोगे तो क्या बनेगा? It will dissociated into ion? No, rather than it form its aqueous solution. क्या form करेगा? Glucose solution form करेगा? Yes or no? So this is the difference between the electrolytes and non-electrolytes. As electrolytes are different from the non-electrolytes, hence their colligative property also different. Yes or no? क्योंकि जो electrolytes है, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो. एक मोल अगर हमने NaCl लिया, क्लियर? कितना मोल NaCl लिया है हमने? 1 मोल NaCl. On dissolving in water, it will converted into Na plus and Cl minus. It means 1 mole of Na plus ion and 1 mole of Cl minus ions are formed. Total quantity कितनी हो गई? 2 mole. Quantity कितनी ली थी हमने? And the resultant quantity is 2 mole. Okay? अभी जब हम water में NaCl dissolve करेंगे, so number of ions become double. As the number of ions become double, colligative property also changes, and that's why it is very important to study the colligative property of electrolytes. Clear? Okay, so write down one point. The study of colligative property, ये लिख लिया आपने? लिख लो. अच्छा, लिखो. Colligative property of electrolytes. Colligative property of electrolytes. The study of colligative property of electrolytes. हाँ, जिसने जो लिखा है the study of colligative property लिखा तो भी चलेगा या डायरेक्टली colligative property of electrolytes लिखा तो भी चलेगा. Okay, electrolytes तक are different than
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किससे डिफरेंट है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, but the study of colligative property of electrolytes are different than colligative property of non electrolytes. ओके, बोर्ड पे लिखा है क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? डिसोसिएट होता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता. जैसे आपने अगर यहाँ पे 1 मोल अगर ग्लूकोज लिया है तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इट रिमेन 1 मोल ओनली. But in case of electrolyte, as dissociation takes place, number of solid particle increases. Clear? Next point. The experimental observation of colligative properties are the experimental observation of colligative properties. The experimental observation of colligative properties are. Yes, जो हमने डिस्कस किया अभी हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे. सो फर्स्ट, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी colligative प्रॉपर्टी शो करते हैं. दे ऑल्सो शो द ऑस्मोटिक प्रेशर, दे ऑल्सो शो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दे ऑल्सो शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन ये जो हमने लॉज बनाए हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स also exhibit colligative property. The solution of electrolytes also exhibit colligative property which do not obey relationship of non-electrolyte. Colligative क्या लिखा हमने? The solution of electrolytes also show the colligative property which do not obey the relationship of non-electrolyte. So all four relation with molar mass, याद है चारों में molar mass की जो भी relation है वो non-electrolyte show नहीं करता. Clear? Second, sorry, electrolyte show follow नहीं करता. Okay? Second, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें नंबर बढ़ते हैं क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहे हैं. तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. या नंबर रिमेन एज इट इज. ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट्स की ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और स्मॉलर देन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? ग्रेटर. क्यों ग्रेटर? क्योंकि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं. क्लियर? समझ में आया? सो राइट डाउन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. The colligative properties of electrolytes, the colligative properties of electrolytes are greater than किससे? Are greater than those of non-electrolyte having same concentration. Colligative property of electrolyte are greater than those of non-electrolyte having same concentration. बोर्ड पे उसका रीजन लिखा हुआ है. यस, राइट डाउन. जैसे 1 मोल अगर हमने NaCl लिया, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू 1 मोल ऑफ Na प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस. टोटल मोल कितना हो गया? 2 मोल. ओके, while in case of non-electrolyte, जिसका एग्जांपल लिया हमने ग्लूकोज, when we dissolve the glucose in water it form glucose solution and concentration remain same. Yes, so write the example of NaCl and glucose.
Yes. Now third observation. बेटा हमने सम बेसिक कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि सॉल्ट के लिए हम मॉलिक्यूलर मास में फॉर्मूला मास लिखते हैं। अरे याद आया क्या? सॉल्ट के लिए हम फॉर्मूला मास लिखते हैं। क्यों लिखते हैं फॉर्मूला मास? क्योंकि जो सॉल्ट होता है इट इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। इट इज नॉट अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इसीलिए सॉल्ट में हम क्या करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल NaCl का हम क्या लिखते हैं 23 एंड क्लोरीन का 35.5। एक्चुअली इट इज अ फॉर्मूला मास। तो हम जब सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने मोलर मास के साथ रिलेशन लिखा है, मोलर मास एंड lowering of vapor pressure, molar mass and elevation in boiling point, molar mass and temperature in freezing point, molar mass and osmotic pressure, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास के साथ रिलेशन निकाला है। yes or no? yes, याद है सबको? चारों रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। yes, याद आया सबको? ओके, नाउ क्यों निकाला हमने मोलर मास के साथ रिलेशन? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होती है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, लेकिन जब वही रिलेशन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम सेम रिलेशन जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने यूज किया तो मोलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी लोअर देन द फॉर्मूला मास। सपोज अभी यहाँ पे NaCl का मास कितना आ रहा है? Na का कितना है 23, Cl का कितना है 35.5। सो द मोलर मास दैट इज वी कॉल्ड एज द फॉर्मूला मास इज 58 ग्राम पर मोल। बट अगर हमने यही रिलेशन इलेक्ट्रोलाइट के जो रिलेशन है अप्लाई किया इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेशन है, तो ये जो आंसर है वो 58.5 नहीं आएगा। It will be less than 58.5. So that is the one of the problem. Hence, there is a requirement to form new relationship of correlative property with the non-electrolyte. इसीलिए नया फैक्टर इन्वेंट किया गया जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई किया जाता है, कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर। क्या कहा गया? वैन हॉफ फैक्टर, डिनोटेड बाय स्मॉल आई। This Bandt factor is a correcting factor. क्या Bandt factor? Correcting factor between the colligative property of electrolytes and non-electrolytes. Clear? So third point लिख लो. Molar mass of electrolytes obtained from relation of non-electrolytes. Molar mass of electrolytes obtained from relation of non-electrolytes are considerably lower than formula mass, are considerably lower than formula mass of the electrolyte. Okay, I repeat again. Molecular mass of electrolyte obtained from the relation of non-electrolyte are considerably lower than the formula mass of the electrolyte. What it is meaning? कि जो हम मोलर मास निकालेंगे इलेक्ट्रोलाइट का वो उससे क्या होता है कम, जैसे मैंने आपको बताया 58.5 आना चाहिए NaCl का, लेकिन नहीं आएगा, इट विल बी लोअर। ओके, हेंस हमें क्या करना है अभी? अगर हमारा कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यस, तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोलाइट्स के, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक करेक्शन फैक्टर चाहिए जो क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इक्वलाइज करेगा, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज बैंट ऑफ फैक्टर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। अब इस बैंट ऑफ फैक्टर का काम क्या है कि बैंट ऑफ फैक्टर यूज करके हम सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।
समझ में आया? सेम जो रिलेशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के वही रिलेशन हम यूज करेंगे, ओनली वी हैव टू ऐड द फैक्टर कॉल्ड एज वैन टॉप फैक्टर। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया? हम डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि देयर इज सम डिमेरिट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार देखिए, लिखो कि आपने जो एक प्रॉपर्टी लिखी है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर फाउंड टू बी हायर दैन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये रीजन में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, अभी इसका लिए मैं आपको रीजन भी बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। नाउ लुक एट द टेक्स्ट बुक नंबर, पेज नंबर 41। उसके नीचे देखो एक, व्हाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर ग्रेटर देन दोज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। आयो पे करो इस क्वेश्चन को, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ओके, नीचे उसका आंसर भी दिया है, उसके नीचे उसका आंसर भी दिया है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू 2 or more ions when dissolved in water, while non-electrolyte do not. Stated differently, one formula unit of electrolyte dissolved in water to produce 2 or more ions, and hence their number increases. Hence the colligative property of electrolytes are greater than the non-electrolyte. और ये लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल भी दोगे NaCl का और ग्लूकोज का या सुक्रोज का। क्लियर? सो टुडे दिस इज योर homework. So mark it. Why the colligative properties of electrolyte are greater than the colligative property of non-electrolyte? Theoretically आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 41 में सबसे लास्ट वाला पैरा, और उसके साथ एग्जाम्पल डालना है जो मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है। समझ में आ रहा है? यही लिखा है वहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, 2 or more आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करते। तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रहता है। क्लियर एवरीवन? ओके, सो राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर अभी बताया क्या है। वैन टॉप फैक्टर इज अ करेक्टिंग फैक्टर। क्या है ये? किसके लिए करेक्टिंग फैक्टर है ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्वेशन को यूज करना है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो डाल दिया सबने हेडिंग वैन टॉप फैक्टर। सो राइट डाउन द वर्ड। फर्स्ट पॉइंट, to use the relation of non-electrolytes, क्योंकि दो बार क्यों नहीं क्या डेरिवेशंस करें, है ना? फिर से फॉर्मूला डिराइव करो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। इससे क्या होगा, उससे वर्कलोड बढ़ेगा और हमारे कैलकुलेशंस बढ़ेंगे। तो अवॉइड दिस, ऑलरेडी हमारे पास डेरिवेशन तैयार है, अरे है या नहीं, फॉर्मूला अवेलेबल है। अभी हम उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे? यूजिंग द फैक्टर by which we can use the formula of non-electrolyte for electrolytes. Okay, and that factor is called as Van 't Hoff factor. So क्या लिखा आपने? To use the relation of non-electrolytes. To use the relation of non-electrolytes for electrolytes. To use the relation of electrolytes for non-electrolytes. Non-electrolytes to electrolytes. Okay, to use the relation of non-electrolytes for electrolytes, correcting factor, comma there, correcting factor called as Van 't Hoff factor. Correcting factor called as Van 't Hoff factor can be used. Okay, कौन सा फैक्टर यूज करेंगे हम? Van 't Hoff factor. हाँ, ये Van 't Hoff factor क्या है? Okay, it is the ratio of colligative property of electrolytes to the colligative property of non-electrolyte solution. What is Van 't Hoff factor? Van 't Hoff factor is a ratio of colligative property of
property of electrolyte solution to the colligative property of non-electrolyte solution. Okay, so write down Van 't Hoff factor defined as the ratio of स्टार देंगे लिखो सिर्फ डेफिनेशन भी आ सकती है 1 मार्क के लिए. Van 't Hoff factor defined as the ratio of colligative property of electrolyte solution, the colligative property of electrolyte solution to the colligative property of non-electrolyte solution. बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है. It is a Van 't Hoff factor is defined as ratio of colligative property of electrolyte solution to the colligative property of non-electrolyte solution. Clear everyone? ओके, सो कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? 4. पहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट. ओके, सो Van 't Hoff फैक्टर पहला है फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का? अरे वो तो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ. डेल्टा पी अपॉन पी, पी या पी नॉट, डेल्टा पी इक्वल्स. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में गलत है. ओके, इट इज सो Van 't Hoff फैक्टर इज गिवन है I इज इक्वल टू डेल्टा पी, ओके, अपॉन डेल्टा पी. ये ऑब्जर्व है, O फॉर ऑब्जर्व फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. O लिखा कोलिगेटिव दैट इज डेल्टा पी लिखते हैं ना बेटा. डेल्टा पी वो जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है? पी माइनस P1 नॉट, सॉरी P1 नॉट माइनस P. ओके, सो Van 't Hoff factor for lowering in vapor pressure is equal to lowering in vapor pressure of the electrolytes to the lowering of vapor pressure of non-electrolytes. O मतलब observe. Observed is used for non-electrolytes. Got it everybody? O मतलब observe. Observe किसके लिए यूज करते हैं हम? Non-electrolytes के लिए. O means observed. It is and used for non-electrolyte solution. किसलिए यूज करते हैं? अभी ये ऑब्जर्व क्यों? क्योंकि हमें पता है, दैट्स व्हाई ऑब्जर्व. ओके, ये हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द Van 't Hoff फैक्टर. समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑब्जर्व क्यों लिखा है? क्योंकि वो हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं और हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसको हम थ्योरेटिकल कहेंगे. ओके, नाउ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का? डेल्टा टीबी. सो डेल्टा टीबी अपॉन I is equal to डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी O. ओके, फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यस, फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर, सॉरी, फॉर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन. सो फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है? I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF ऑब्जर्व. ओके, ऑब्जर्व किसके लिए? ऑब्जर्व किसके लिए? एंड फाइनली फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? अरे पाई.
So I is equal to pi upon pi observed. So this is the correction of the equation of non-electrolytes for electrolytes using colligative property. लिख लिया? चलो लिखो फटाफट. Is it easy? What is colligative property? What is colligative property? The ratio of colligative property of electrolyte solution to the colligative property of non-electrolyte solution. याद रखना हमने non-electrolyte के लिए observed लिखा है, that is O. O for like orange. O for observed. हाँ ठीक है. Okay, now हर colligative property का हमने मोलर मास के साथ रिलेशन निकाला है. Yes or no? Done. Now finally हम यूज करेंगे Van 't Hoff factor for correcting molecular mass, that is molar mass. So I is equal to M theoretical upon M observed. The M theoretical is the theoretically calculated and M observed मतलब जो हम निकालते हैं, okay, जो दिया जाता है. Can I rub? चिंता हो गया लिखो. चिंता हो गया. और फॉर्मूला लिख लो मोलर मास के लिए. क्या फॉर्मूला है मोलर मास के लिए? Van 't Hoff factor is equal to M theoretical upon M observed. That is very important formula. बेटा क्या हो गया आपका? लिख के हो गया तो आगे का पढ़ो. टाइम बंद कर बेटा बोलने. So last formula for Van 't Hoff factor. So we can correct the molecular mass of the non-electrolyte and electrolyte with the help of Van 't Hoff factor, and it is Van 't Hoff factor is equal to M theoretical upon M observed. Okay, that is molecular mass which obtained through the theoretical, and it is a observed molecular mass. Okay, so write down the next formula. 5 फॉर्मूले हो गए. 4 colligative property के लिए 4 और एक मोलर मास के लिए. एक कौन सा है? मोलर मास के लिए. Okay, so we will take one example. So generally I की वैल्यू हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है. Okay, please, that is very very important. अभी जो बता रही हूँ,
इसलिए अच्छे से डाल दो। द वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज 1 फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, सो आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1, आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाई? यस, कोई बता सकता है क्यों नहीं है, क्यों हमेशा 1 होता है? क्योंकि वो डिसोसिएट, यस वेरी गुड, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज, कंसीडर नाउ एग्जांपल ऑफ यूरिया। अगर हमने यूरिया को डिसॉल्व किया तो ये क्या बनेगा? यूरिया सॉल्यूशन, यस और नो? डिसोसिएट होगा, आयंस बने इससे नहीं, लेकिन द वैल्यू ऑफ आई इज 2 और मोर, द वैल्यू ऑफ आई इज 2 or more for electrolytes. For example, NaCl. NaCl will be dissociated into, in aqueous solution it will be dissociated into Na plus and Cl minus. तो I की वैल्यू कितनी हो गई? डबल हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ KNO3 के लिए अगेन KNO3 dissociated to from K plus NO3 minus, so value of I is 2. Okay, now we will take some more example. Consider example of Na2SO4. Okay, in aqueous solution Na2SO4 will be dissociated into twice Na plus SO4 2 minus. What will be the value of I? 3. अभी 3 कैसे आया? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, 3 कैसे आया? चार्ज नहीं, नंबर्स हमें कैलकुलेट करना। यहाँ पे 2 आयंस बने थे, यहाँ पे भी 2 आयंस बने, यहाँ पे 2 नहीं बने, 3। Na के देखो कितने मॉलिक्यूल्स है? Na के 2 आयंस, SO4 का 1 आयंस, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? ओके, सेम विथ H2SO4। When H2SO4 dissolve in aqueous solution, it will dissociate into twice H plus plus SO4 2 minus. I की वैल्यू 3, I की वैल्यू, got it everybody? किसी को प्रॉब्लम है? Now you can calculate the value of I. ठीक है, एक 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें आता है, आपको दिया जाएगा and calculate the value of I. अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये तीनों एग्जांपल ज़्यादा देते हैं। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, सुक्रोज का आपको पता है C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6। अगर ये 3 एग्जांपल दिए तो आई की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 1, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट नहीं होता। अगर NaCl है, KCl है, KNO3 है, NaOH है, HCl है, इनके लिए वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। क्यों 2 आएगी? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद 2 आयंस बनाएंगे। अगर Na2SO4 है या H2SO4 है, ये कितने आयंस बनाएंगे? तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है? एनीबॉडी हैविंग एनी डिफिकल्टी? नाउ टुडेज होमवर्क, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यस, आई विल सेंड अ क्वेश्चन बैंक। ओके, नाउ यू हैव 3 days हॉलीडे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज MCQ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, पहले MCQ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। क्लियर? एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।